بولنے کا موقع عنایت فرمایا، اور میں آپ کا اور اس جامعہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس عظیم دعائیہ مجلس میں حصہ لیا اور ہمیں مدعو کیا۔ جعفر امیر صاحب شہر کڑپا کے لیے نہ صرف شہر کڑپا، میں یوں کہوں گا کہ آندھرا پردیش میں شعراء میں، ادبا میں، یا پھر امپلائیز کی لائن لے لیں تو ملازموں میں بہترین شخص ہیں۔ بہترین شخص کہنے کے لیے یوں ہی زبان سے ہر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے چند وجوہات ہیں۔ ان کی طرز زندگی ہے، ان کے معاملات ہیں، لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوتے ہیں اس درمیان ان کا سلوک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو منفرد بنا دیتی ہیں۔ جعفر امیر صاحب سے میری پہلی ملاقات شاید 2006 یا 2007 میں ہوئی، تو پہلی مرتبہ ان کے گھر جانا ہوا۔ جانے کے بعد جعفر امیر صاحب اندر بلائے، بیچ کا جو حال ہے حال میں بٹھائے، اس کے بعد چائے کا آرڈر کیا، تو گھر میں سے کوئی چائے لا کر دیے، چائے پیو بولے۔ چائے پینے کے وقت میں مجھے کیا کرتے کیا کام کرتے بولے تو حضرت میں پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ڈگری پڑھتا ہوں۔ کیا سبجیکٹس کیا ہیں تمہارے؟ اردو ہسٹری ہے سر۔ اچھا، اردو ہسٹری میں کیا کیا سبجیکٹس ہیں تمہارے؟ تو اردو لٹریچر رہتا، آندھرا ہسٹری، یورپین ہسٹری، اور اس کے بعد سے پولیٹیکل سائنس، یہ ساری چیزیں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہسٹری آتی کیا تم کو؟ ہسٹری اسٹوڈنٹ حضرت میں ہسٹری آتی کیا؟ تھرو آتی ہے۔ یورپین ہسٹری جانتی کیا؟ وہ جانتے ہوں گے۔ سبجیکٹ ہے نہیں تم کو؟ ہے۔ 1950 پر 2 میں شاید میں ڈگری کرا تھا، تب یورپین ہسٹری تھی۔ ابھی یورپین ہسٹری وہ ہے کیا کچھ ہے؟ تو ہسٹری ایک ہی بدلتی نہیں کیا؟ عنوانہ بدلے ہو سکتے، نہیں بدلے وہ پورے، تو عنوانہ بولو سو اینڈ سو بولو۔ تو حضرت فوراً ایک سوال کرے، اچھا یورپین ہسٹری میں کون کیا ورک کون؟ اب مجھے معلوم نہیں تھا، خاموش ہو گیا۔ پھر ٹھیک ہے خاموش، پھر مسلونی کون؟ پھر میں خاموش ہو گیا۔ ایڈیباجی کون؟ پھر میں خاموش ہو گیا۔ تو کیا ہسٹری پڑھتی تھی تمہیں؟ ہسٹری معلوم نہیں ہے تمہیں؟ اب میں چائے پی لوں، باہر آنے بعد کیا بھی پڑھے تھی، بڑے زبردست تھی۔ گھر میں بلائے، چائے پی لے، پھر اس کے بعد سے کرتے لہجے میں بات کرے، عزت نکال دے میری، بول کے باہر آ گیا مالش ہو۔ پھر اس کے بعد میرا ہاف ایئرلی ایگزام ہوا۔ ہاف ایئرلی ایگزام میں حضرت جو سوال آپ پوچھے تھے وہ پورے میرے کوشچن پیپر میں ہے۔ اس کا مطلب میں نہیں پڑھا، وہ ہسٹری ہے، کلاسز کو جاتے تھے، اور ہسٹری ہمارے استاد جی الحمدللہ ماشاءاللہ تھے، سمجھو میں ہسٹری نہیں اتنا زیادہ پرفیکٹ نہیں ہوں بولے تو اب اندازہ لا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، لیکن پھر اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت جو بات پوچھے تھے وہ میرے سبجیکٹ سے اور میرے نالج کے تعلق سے پوچھے تھے، میں نااہل تھا جواب نہیں دے سکا، الٹا حضرت کو میں برا بھلا سمجھ لیا۔ تو وہ بنیاد تھی حضرت کی میری ملاقات کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بار بار ہم لوگ جاتے تھے، آتے تھے، پڑھنے کا شوق تھا، شاعری کرنے کا شوق تھا، تو اس کے تعلق سے کتابیں چاہیے تھی ہمیں۔ اب شہر میں بہت سارے لوگوں کے پاس کتابیں ہیں، چھینے پر کیا ہو دیتے میری کتاب کی دھول چل گئی بول تو پھر دھول واپس لگا لیے، تو ایسے استعمال کو رکھتے کسی کو دیتے۔ لیکن جعفر امیر صاحب تقریباً ہر کتاب کے اوپر 500، 600، 1000، 1200، 2000 روپے کی کتاب کی رقم رہتی، اس کے اوپر نکالے کتاب، حضرت کی کتاب ہونا تو ٹھیک ہے لے لے، وہ جاؤ پڑھو، پھر واپس لا دو۔ لے لے کے آنے کے بعد 1 ہفتہ یا 2 ہفتے، 10 دن، 15 دن، 20 دن نہیں کچھ سے پھر لا کو دینے کے بعد اچھا کتاب لے لے کے آگے، ٹھیک ہے لے لے آگے حضرت کو کیا پڑھے اس میں؟ اب کیا پڑھے بولے تو ایک شامل پھر جواب دینا حضرت کو، یاد کس سے رہتا؟ ارے حضرت یہ سرسری طور پر ایسا پڑھے بولے تو ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کتاب کے اوپر ریویو 10 سے 15 منٹ تک حضرت دیتے تھے۔ میں کب پڑھا معلوم؟ یہ کتاب 1980 یا 1970 میں پڑھا میں، جب پورا یاد ہے مجھے، جو میں 1 ہفتہ پہلے لے لگے، اب تک یاد نہیں ہے، پڑھ لیا فریش پڑھے تو یاد نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں کیا ہمیں بولے تو اپنا کو اور زیادہ حضرت سے خرید کرتے گئے۔ پھر اس کے بعد میرا ڈگری ہو گیا، ڈگری ہونے کے بعد اور ڈگری کے دوران جب بار بار ہم لوگ حاصل ہو گئے اور بار بار ملنے آتے تھے، تو گھر میں ایک بوڑھا بیٹھا رہتا، اسے کیا چاہیے تھا؟ لوگوں کی آمد چاہیے تھی۔ تو لوگ آتے ہیں بولے تو کیا کرتے؟ ٹھیک ہے آتی ہیں، اچھی بات، آؤ بیٹھو میرا ٹائم پاس کرو بولتے، لیکن حضرت کی بات ایسی نہیں تھی۔ بار بار میرے پاس کئی بات نہیں ہے، تمہیں ڈگری پڑھی ہے، تمہیں کیا تمہیں ایگزامس کے واسطے پریپیئر ہو، تمہیں
बहुत सारे ये देखा है ग्रुप्स के एग्जाम देते रहते हैं, एग्जाम का सिर्फ पेपर हो, मेरे पास आपको बैठनी आज बार बार तुम्हें बोलते थे, मैं हजरत 10-15 मिनट के बाद मैं आती हूँ तुम्हारे पास आए तो अच्छा लगता है हम लोग को बोलते थे। तो ये अच्छा लगना ऐसा हुआ। उसके बाद ऐसा अल्लाह ताला ने हमारे सरदार साहिल मेरे और हजरत के बीच में एक ऐसी मजबूत डोर बना दी जिसे जो है टूटने पर सांस उखड़ने का जैसा अंदाजा लगता है, ऐसा सांस उखड़ने का एहसास होता है। तो फिर उसके बाद बहुत सारी लंबी तवील हिस्ट्री है, वक्त बिल्कुल कम है, मैं सरसरी तौर पर बोलता चले जाऊंगा। फिर उसके बाद जब जाफर अमीर साहब के पास हमारा आना जाना ज्यादा हो गया तो कड़पे के शोरा उदवा में हलचल मच गई। एक जब हमारे क्या नाम इनका यूसुफ सभी साहब के बेटे सैयद जमाल क्या बोले, जब वो ऊँट ऐसे एक खद्दावर पहाड़ हिमालय की जैसी चट्टान की जैसा एक पहाड़ दो बच्चों के सामने झुक गया, बोले क्या समझाएंगे बात, तुम्हारी बात में समझ गया नहीं बेटे। जाफर अमीर साहब शहर कड़पा में किसी को भी खातिर नहीं लाते थे, खातिर में नहीं लाते थे, लेकिन तुम्हें दोनों बच्चे कैसा लगे उनसे मुझे समझ में नहीं आता है। तो भैया हमारा क्या भी नहीं है, भैया हजरत हमारे को मोहब्बत से पेश आते हैं हमारे साथ, इस बात से हमें जाते नहीं हो है। ऐसा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं किताबों में भी मैं लिख चुका हूँ, इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं उसका ज़िराज भी हमारे हजरत के जरिए से आप तक पहुँचाऊँगा। तो उसके बाद ये 2009 में मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ, मैं नफाश स्कूल में चले गया, फिर वहाँ से वुमेंस कॉलेज में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। तो 2013 में मैं वुमेंस कॉलेज को आ गया। वुमेंस कॉलेज की पहली बैच थी, उर्दू मीडियम वहाँ पर कायम हो चुका था। मोहतरमा शाजिया बेगम साहिबा की कोशिशों की वजह से वहाँ पर डिग्री में उर्दू मीडियम कायम हुआ। अब उसके बाद बच्चों को लाना मसला था, पहला साल था, लोगों को मालूम नहीं था, 10 बच्चियां मिनिमम होना था, लेकिन वहाँ पर 2-4 बच्चियों ने एप्लीकेशन डाला था। फिर उसके बाद मोबिलाइज करे हम लोगों में मोबिलाइज करने के बाद बहुत सारी बच्चियां आ गई, तकरीबन 20 से 30 बच्चियां जो है एक क्लास में आ गई। उसके बाद मालूम है हमारे आप सब जो है मुसलमान घरों से हैं, और मैं समझता हूँ कि मुतवस्सित दर्जे से या फिर उससे भी कम दर्जे के बहुत सारे लड़कियां रहती हैं, और आला दर्जे के यानी कि अच्छी माशी हालत रखने वाले बहुत कम अफराद हमारे पास रहते। तो हमारे पास भी जो बच्चियां आए थे वो बच्चियां एप्लीकेशन डालने के बाद तकरीबन 5 या 6 एडमिशन हुए, बाकी के पूरे खामोश हो गए। तो फिर उसके बाद मैडम लिस्ट दिए, बेटे बच्चों से बात करो, एडमिशन जो है 7 या 8 है, 10 होना मिनिमम, नहीं तो कोर्स को भी अंदर हो गए। तो ठीक है मैडम मैं बात करती हूँ, लाइन से पूरे बच्चों का डेटा निकाल के बात किया। तो कोई बोलते हमारे अब्बा करोड़ों की बोले, कोई बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, कोई बोलते पिज़्ज़ा तो बंदा के अंदर हमें, लेकिन आने जाने ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारे पास नहीं है, कोई बोलते हमारे पास किताबें नहीं है। तो मजबूरी शक्ल के ऊपर हर कोई जो है किसी न किसी किस्म का जो है उज़र बता रहा था। तब हम लोग परेशान थे। उसके बाद शाम में हजरत से मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद हजरत से बात करें क्या है जी शहर के हवाल, मैं घर में बैठा रहता हूँ, बाहर के हवाल तुम्हें सुनाना बोलते हैं क्या भी नजर सुबह से ऐसा हुआ, पुराने मुशायरे गए थे, पुराने जगह गए थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं सरदार साहिल बात करते थे क्या कहना बच्चे इन बच्चियाँ का समझ में नहीं आता है, अब पैसा गिर कर को इनको एडमिशन दिलाना है, तो क्या दियो क्या बड़बड़ा देंगे, नहीं हजरत ऐसा मसला है, मरोड़ जबान में बोलता हूँ, दरिंदरा एडमिशन लेने वास्ते चाहते नहीं, किसी ना किसी किस्म का बहाना लगाते हैं। मैं क्या मालूम नहीं हमारे कौम की हालत हो, जब से नवाबियत हमारे पास ही गई, सिर्फ नवाबियत के भरोसे को जिले थी, ढोंग रचा लेती, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। अकल जो पहले जरी जो लिखा वो भी चलेगी, तालीम भी चल गई, हमारे पास राज क्या है, कितने बच्चा नहीं बोलो बोले हजरत, ऐसा तकरीबन 12-15 बच्चा नहीं हजरत, कितना होता खर्चा उसका बोले तो 70-5,000 रुपये होता है। तो अच्छा ऊपर से डब्बा काटे चेक डाले, किसके नाम से लिखना बोलो, किसके नाम से लिखते हैं हजरत, कॉलेज के नाम से बोले तो कॉलेज में तो प्रिंसिपल का अकाउंट लिखा बोले, प्रिंसिपल अकाउंट लिख देंगे बोले, ठीक है। तो किसके नाम से लिखना तो सरदार साहिब के नाम से लिखो। अच्छा सरदार साहिब नहीं हजरत मेरे पास ATM नहीं है, अनवर हाजी के नाम से लिखो, लिखता है 70-5,000 रुपये ड्रा करा, ये ले जाकर बच्चों को दिया, बच्चा जो है एडमिशन ले लिए। उसके बाद 3 साल मुकम्मल कर लिए, फिर उसके बाद MA पढ़े वो बच्चियाँ, MA करने कर हजरत के पैसों में पढ़ी वाली बच्ची, आज एक बच्ची आप गए थे कल प्रोग्राम में शाकिरा के नाम से, आप वहाँ पर लेक्चरर के साथ काम करें, और 2 लड़के ग्लोबल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, आप हैदराबाद
بیگم پیٹ حیدرآباد بیگم پیٹ ایئرپورٹ میں کام کرتی ہے آؤٹ سورسنگ میں, اور ایک بچہ باہر جا کر ہے کچھ انجینئرنگ کے بیس کے اوپر. اور بہت سارے بچیوں کو جو ہے حضرت پڑھاتے تھے, بہت سارے لڑکوں کو علم کے معاملے میں اگر کسی کی مدد کرنا ہے بولے تو جعفر مرزا کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اور اس سال کا جو ہے سلسلہ 70 پر 5000 سے شروع ہوا, پھر اس کے بعد لاکھ بھی ہوا, 1.5 لاکھ بھی ہوا, پھر 50,000 ہوا, کتنا بھی ہو اس کے اوپر حضرت آگے پیچھے سوچتے نہیں تھے. بچوں کا معاملہ پڑھانے کا ہے بولے تو ہماری قوم کو اگر ایک گھر دے دیے, کھانے پینے کا معاملہ حل کر دیے اور اس کو کپڑے دے دیے تو ساری چیزیں وقتی تمہیں پڑھا لکھا کر اس کو جو ہے کچھ قابل بنا ڈالو, انہیں جینے کا قابل بن جاتا. یہ حضرت کا اصول تھا. صحیح بات. تو بہت سارے لوگ بولتے تھے جعفر امیر صاحب کے پاس تمہیں اس طرح سے لگنے کی وجہ کیا ہے, تم اتنا قریب کہیں تو رہتے, بولے تھے یہ ساری چیزیں تھیں. اور اس کے بعد جب جعفر امیر صاحب سے ہمیں بات کرتے وقت دوران گفتگو بولے حضرت کڑپا میں بہت سارے لوگ جو ہے منہ پھٹ انسان بولتے تھے, منہ پھٹ انسان اس میں بولتے تھے. ویسے کیا بولے تھے جو بھی آج جو ہمیں دور سے چلتے ہیں مسیحت کا دور ہے, بڑے سے بڑے پائے کا بزرگ ہی کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑے پائے کا جو ہے پولیٹیشین کیوں نہ ہو, یا پھر چھوٹے سے چھوٹا انسان کیوں نہ ہو, ہر آدمی مسیحت کا شکار ہے. اب میں مولانا اسحاق صاحب کے تعلق سے کچھ برا بولنا چاہوں تو یہاں پر نہیں بول سکتا, کیونکہ حضرت یہ بلائے گلاب کو مائک دیے ان کے خلاف کیسا بول سکتا ہوں. اگر یہ پلیس کے اوپر جعفر امیر صاحب ہوتے, اگر مولانا اسحاق صاحب کی کوئی خامی ہوتی تو بلاتے فوراً اٹھا کے, ایسا کرے گی تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. یہ جو ہے ایک مومن کی نشانی ہے, پیچھے بولنے والا منافق, سامنے بولنے والا مومن. جعفر امیر صاحب کے پاس بہت ساری خوبیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کے قریب ہوئے. اور پھر اس کے بعد جب ان کی کتابیں زیادہ سے زیادہ جو ہے کتابیں ہم لینا شروع کریں, پڑھنا شروع کریں, پھر اس کے بعد ان کا مطالعہ کریں, پھر ان سے جو ہے بحث کریں, بحث کرنے کے دوران بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں. تو آخری صفحے میں جعفر امیر صاحب کے تحریریں تھے, تو کتاب کے اوپر ان کا تاثر تھا, اور تاثر زبردست تھا. تو ہم لوگ ایک کتاب پڑھے, 2 کتاب, ہر کتاب کے اوپر تاثر ہے, ہر کتاب کے اوپر تاثر ہے. تو حضرت بولے حضرت آپ کے تاثرات زبردست ہیں, یہ تنقیدی مضامین کے نام سے اس کا مجموعہ شائع ہو سکتا ہے. بولے تو میں دفنون تباہ کے واسطے لکھ لیا, تو یہ شائع کرنے کے واسطے نہیں, مجھے نام کی ضرورت نہیں ہے, میں کرتا نہیں. بولے اس کے بعد بار بار اصرار کرے, بار بار اصرار کرے. اس کے بعد کیا جی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں, پیچھا ہمارا ان کو اٹھا کو کتابیں دیے, اور رات کے تقریباً 12-1 بجے تک بیٹھے. حضرت کی صحت اچھی تھی, بیٹھ کر جو ہے تحریر تھوڑا سمجھنے میں ہمیں تکلیف ہوتی تھی تو حضرت ہم ڈکٹیٹ کرتے تھے. تو ساری کتابیں 12-1 بجے تک بیٹھ کر تقریباً 1 ہفتہ یہ تھا. اس کے بعد جو ہے مجموعہ کلام باہر آیا سریر خامہ کے نام سے, سخن گسران آباد کے نام سے. تو اردو دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا. اردو دنیا میں ایک دوسرے کی چاپلوسی کرنے والے, ایک دوسرے کو سراہنے والے, خامیاں بتائے بغیر تعریف کرنے والے, یہ سارے لوگ تنقید بولے تو ایسی ہوتی ہوئی تنقید. یہ تنقید کی جو ہے لوگ سراہنا شروع کرے. پھر اس کے بعد جعفر امیر صاحب دوسری کتابوں کی طرف بھی متوجہ ہوئے. اب تقریباً 11 کتابیں جعفر امیر صاحب کی شائع ہو چکی ہیں. 11 کتابیں باقاعدہ طور پر 300 کاپیاں, 4 کتابیں شائع ہوئے. پھر اس کے بعد 20, 25, 50 یا 100 کاپیاں جو ہے الگ الگ شائع ہوئے. اور اس کے بعد 2 مجموعے کلام غیر مجموعہ ہے, اور اس کی ذمہ داری شائع کرنے کی ذمہ داری جو ہے حضرت میرے کاندھوں پر رکھے. تھوڑے اس میں تلخ باتیں تھیں کڑپا کے شورا کے تعلق سے. تو حضرت پہلے سے لوگ آپ کو برا بولتے ہیں, اوپر سے جو ہے ایسی ٹھیٹ تنقید بولے تو لوگ پریشان میں آتے, نفو حضرت بولے تو جی تمہیں ڈالنا سوچیے. بولے نہیں حضرت نہیں ڈالتا میں. بولے تو ٹھیک ہے, میرے مرنے کے بعد ڈالو. تو وہ باتیں جو ہے جب ہمیں اتنا زیادہ متاثر نہیں کرتی تھی, لیکن اب جو ہے یاد کریں تو دل بھر آتا ہے. جعفر امیر صاحب ایک میں علمی آدمی تھے, اور تقریباً قوم کے معاملے میں جس طرح سے سر سید احمد خان اس دور میں مسلمانوں کے لیے فکر مند تھے, اس دور میں اب دور حاضرہ کے سر سید جعفر امیر صاحب ہیں. کیونکہ قوم کو جو ہے ہر طرح سے وہ آگے لے جانا چاہتے تھے, لیکن قوم کی حالت دیکھ کر تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سے انتقال ہوئے, ان کا وصال ہوا, اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور. پھر اس کے بعد مسلمان قوم بکھر گئی ہماری, تب سے اب تک جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آج نہیں سکے. یہ جو ہے بار بار جعفر امیر صاحب دوہرا دیتے ہیں. مطلب اتنی دور سے کہیں جاتے ہیں, کیا سوچتے ہیں حضرت میں. بولے تو اب دیکھو ہماری قوم کا مسئلہ دیکھو,
अच्छे अच्छे नॉन मुस्लिम जो है बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन हमारे कौम का मसला देखो। और मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि हजरत मदरसों के खिलाफ भी थे, और खिलाफ बोले तो पूरी तरह से नहीं, खिलाफ कैसा बोलो, मस्जिद में भी 2-3 मरतबा बहस हुई थी, तो घर भी गए, मैं जाने के बाद हजरत क्या बार बार तुम्हें मदरसों के खिलाफ बोलती हैं, तो मैं मदरसों के खिलाफ नहीं थी। एक लड़का जो है मदरसे में तालीम हासिल करता, उन्हें 10-15 साल अपनी उम्र खपा जाता, आलिम बनता, हाफिज बनता, कारी बनता, मौलवी बनता, फिर उसके बाद दुनिया में उन्हें बाहर आता, आने के बाद शादी होती, जोरू बच्चे होते, उन्हें उसको रोजगार की उसकी जरूरत पड़ती, तो उन्हें बाहर या बोलते एक अलग सी दुनिया नजर आती, उसे अंधेरा नजर आता हर तरफ से। उन्हें करता क्या, 100 बच्चे अगर से आलिम बन गए, मौलवी बन गए, हाफिज बन गए, कारी बन गए, तो उन्हें करते क्या, 100 बच्चे मदरसे नहीं लगा सकते, 100 बच्चे जो है मस्जिदों में जाना, तो मस्जिदा 100 जिला के वास्ते 100 मस्जिदा बना सकते क्या, नहीं बना सकते। तो जाफर अमीर साहब का कहने का मतलब ये था कि हमारे पास दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का होना जरूरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में दुनियावी तालीम का भी इंतजाम है। अभी मैं इससे पहले भी सुना था, फिर हमारे मौलाना इसहाक साहब बोले कि हमारे पास जो बच्चियाँ मदरसे से फारिग होती, उन्होंने जो है डायरेक्ट डिग्री के लिए मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से राबिता कर सकते हैं, बोलकर बहुत खुशी की बात है। तो मौलाना हमारे जाफर अमीर साहब भी यही चाहते थे। हमें सुनकर जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग मुतासिर हो गए थे, और लोगों में इसकी जो है तफसील भी बताते थे कि जाफर अमीर साहब के ख्यालात ऐसे हैं, आप जो है इस तरह से समझते थे। तो जाफर अमीर साहब की किताबें बाहर आ गई, उनसे लोग, और जाफर अमीर साहब की इल्मी नज़र का आप अंदाज़ा लगाइए। इंजो कॉलेज में एक इमाम थे, खतीब भी थे, इमाम और खतीब दोनों थे, तो एक मरतबा हमारे मौलाना खिताब के लिए आ गए, जुमा का खुतबा है मौलाना, तो उसके बाद जाफर अमीर साहब जुमा में मौलाना चले गए, चले जाने के बाद जाफर हुसैन साहब हैं, उन्हीं के खास दोस्त हैं, तो उनसे बोले कि मौलाना जुमा कंटिन्यू करो, तो कंटिन्यू करो, बोलता है जो पैसे होना नहीं कह रहे हैं, तो पैसे लाने बोले, तो पैसा नहीं कहेगा, बोलता मैं जिसको कितनी पैसे, दोस्तान दोनों दोस्तान को एक दूसरे को एक दूसरे से बात करते थे, और सेम चार्ज दोनों का। तो उसके बाद मौलाना को तकरीबन, क्या मौलाना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तकरीबन 3 साल तक तो जाफर अमीर साहब अपने जेब से मौलाना को तनख्वाह देते थे, माशाअल्लाह। तो मौलाना, मैं मौलाना साहब में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मौलाना का बयान और उनका जो बात करने का अंदाज है कड़पा में बहुत सारे लोगों से अलग है। इल्मी गुफ्तगू रहती मौलाना की, हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में सारी चीज़ें जो है बोलती है, ऐसे वैसे मुठिया के कहने नहीं रहते उसमें। इस वास्ते जाफर अमीर साहब मौलाना की जो है तकरीर को पसंद करे और मौलाना को वहाँ करे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है मौलाना वहाँ पर कायम दायम है, या फिर मैं यूँ कहूँगा कि इंजो काली के मस्जिद के गायबाना तौर पर प्रेसिडेंट है, मौलाना जो भी बोलते हैं वहाँ पर सब मौलाना का ही चलता है माशाअल्लाह। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जाफर अमीर साहब के बारे में जितना भी मैं बोल रहा हूँ उतना कम है, क्योंकि तकरीबन कई सालों का जो है हमारा एक दूसरे का ताल्लुक था, कई सालों की बातें हैं, कई सालों के तजुर्बे हैं, कई सालों का जो है एक दूसरे को बात किए हुए जाविये हैं, तो सारी चीज़ों को मैं बयान नहीं कर सकता। जाफर अमीर साहब एक मरतबा बोले कि मैं एक आदमी था, तो उन्होंने क्या बोला, जाफर अमीर साहब को उनकी ज़िंदगी में क्या करें, रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने दीन की तरफ आगे अब फॉर्म नज़र आती है उनको। मुझे ज़रा अफसोस हुआ और तकलीफ हुई, क्योंकि अपना आदमी जिसे हम अपना बोलते हैं, उन्हें जितना भी खराब हो उसे लोग खराब बोले तो तकलीफ होती है। तो हमें जाफर अमीर साहब को करीब से जानते थे, जब से हम जाफर अमीर साहब को जानते हैं तब से लेकर अब तक बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ जो है खूबियों की तरफ ही जाती हैं, और मैं खामी कभी भी उनकी नहीं देखा, और बहुत सारी चीज़ें जाफर अमीर साहब सुनाइए, जवानी में जो है मेरे मुलाजिमत के दौरान ये चीज़ें चले, हादिसे चले, सारी चीज़ें बताएं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो फिर मैं जाफर अमीर साहब से बोला कि हज़रत आपके ताल्लुक से शहर में एक आदमी ने आपकी पहचान का इस तरह से आप पर सवाल किया है, तो बोले हादी जो तुम्हारी बात है सीधा मेरे दिल को चुभती है, शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं उसके वास्ते नहीं तुम्हारे वास्ते बोलता हूँ। बोले क्या मदद बोले, तो जब आप DCO की तरह थे तो मुसलमानों को अलग से लोन देने के लिए एक जीवो पास किया जाता, मुसलमानों को हर कोई वादा करता लेकिन देता नहीं था, लेकिन जाफर अमीर साहब क्या करे,
एज ए डीसी और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर होने की वजह से आप अपने ओहदे का इस्तेमाल कर जो है अलग से जियो कायम कर लोगों को लोन दिए 10,000 का लोन, और तकरीबन 15 लोगों के मुसलमानों के नाम है। तो उसके बाद डीसी में ऑफिस को गया, मैं ऑफिस को जाने के बाद सोरेंसो की अच्छा रिकॉर्ड बना, बोले नहीं देते, बोले फिर जाफर निसार के पास हजरत मैं लिखना चाहता हूँ तुम्हारे ऊपर, लोग जो है क्या बोलते मुंह की बात कर बोलते, लेकिन मुझे ऑथेंटिक होना, इस बात से आप उनसे बात करो। बोले तो ठीक है, बोल को बात करे, चन्नारेड्डी कुछ नाम था, उससे बात करने के बाद साथ में कॉम्पिटिशन नहीं तपकुंडा इसका बोला, तो बेचारा क्या करा, पूरे लिस्ट में से निकालकर 15 लोगों के नाम दिया, 15 लोग मुसलमान थे। तो करने वाला कभी भी जताता नहीं था। तो जाफर अमीर साहब बोलते थे जिंदगी में मैं जब से मैं पैदा हुआ तब से लेकर मेरा बचपन कैसा गुजरा, बात की बात है, जब से मैं जवान हुआ, मुझे मुलाजिमत के लिए मेरी शादी हुई, तब से लेकर आज तक मुझे काटन चुभने के बराबर भी तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह ताला मुझे हर लिहाज से अच्छा रखा। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, मेरे बच्चे सेटल्ड हैं और मुझे ज्यादा मोहब्बत करने वाली बीवी भी मिली है, मेरी बीवी की हिम्मत मुझे बहुत ज्यादा है बोलकर जाफर अमीर साहब हर की हमेशा जो है तारीफ करते थे। ये सारी चीजें जाफर अमीर साहब की कामयाबी की दलील है, कामयाब इंसान होने की दलील है। तकरीबन जाफर अमीर साहब के हैदराबाद जाने से 2-3 दिन पहले घर गए थे, तो जाफर अमीर साहब से बात हुई, हजरत कैसा हजरत आप हैदराबाद जाते हैं, उसके बाद हमें मिलना बोले तो तकलीफ होती है, तुम्हें कहा थी हैदराबाद को, मैं हूँ ऐसा चल गया, तो मैं तुम्हें आ सकते नहीं। सब अंदाजा नहीं हुआ उस बात का कि हजरत का जो है बोलना इस कदर जो है बात के पक्के का बोल तो मालूम था, लेकिन इस मामले में बात के पक्के रहते बोल को भी ज्यादा नहीं था। अब जब भी एनजीओ वाली की तरफ से बोले तो घर की तरफ जाने से हमारा दिल नहीं करता है। जब हजरत इंतकाल हो गए, शाम में हजरत को ले लेकर आते हैं, मालूम हुआ तो रूम में जाकर बैठे जहाँ पर हमें हमेशा बैठते थे, कई बरसों से बैठते थे, हमें वो रूम हमें काट में आई जैसा महसूस हो रहा था, तो उठकर बाहर आ गए। जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत सारे लोगों से हमारी दोस्तियां थी, बहुत सारे लोगों से झगड़े हुए, लेकिन इतना ज्यादा मुतासिर करने वाला इंसान वो पहला शख्स जाफर अमीर साहब थे। मैं जब तक मेरी सांस है इंशाअल्लाह मेरी सांस के साथ जो है जाफर अमीर साहब का जिक्र खत्म हो सकता है। जब तक मेरी सांस है तब तक मेरी सांसों में जाफर अमीर साहब जिंदा रहेंगे। हर किसी ना किसी बात के किसी ना किसी पहलू पर जो है उनकी बात टकरा जाती है, उनका ख्याल जो है हमारे जहनों में टकरा जाता है। मौलाना आज़ाद के बहुत बड़े शायर थे, मौलाना आज़ाद की बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। हजरत मौलाना आज़ाद के ताल्लुक से स्पीच है हजरत बच्चों को देना है, बोले तो अच्छा ठीक है शाम में आओ तुम। शाम में जाने को इतना बड़ा पेपर लिख कर रख जाते मौलाना आज़ाद के ताल्लुक से, और मौलाना आज़ाद की तफसीर बहुत ज़्यादा शौक से पढ़ते थे, क्योंकि बहुत सारे अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दायरे नज़र है। जाफर अमीर साहब मौलाना आज़ाद को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए कि मौलाना आज़ाद की जो ये है तफसीर है बिल्कुल ठेठ मालूम है, आजू बाजू के हवाले या फिर हदीसों के नाम पर ज़ईफ़ या फिर फलां फलां हदीस बोलकर सही हदीस ऐसा नहीं बोलकर नहीं है, सिर्फ जो है ठेठ माना रहता। और तकरीबन मौलाना आज़ाद आखिर में इनका तस्करा है ज़ुल्करनैन का, तकरीबन मौलाना आज़ाद जो लिखे हैं वही तहरीर को जो है लोग ऑथेंटिक समझते हैं। वो सारी चीज़ें हैं जाफर अमीर साहब की कौम के हमदर्द के लोगों से अच्छे से पेश आते थे, ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चियां हो या बच्चों हो उनको जो है आगे बढ़ाना चाहते थे, और एक सेंट्रलाइज मुसलमानों में कायम करना बोलकर चाहते थे। कहीं बेंगलुरु में देखा था जाफर अमीर साहब ने कि मुसलमानों को अपने सदक़े और ज़कात जमा करके उनको जो है खर्चा देते थे, खर्चे हसना के तौर पर वो ले लेके फिर जो है किस्तों में महीने में एक मरतबा या फिर हफ्ते में एक मरतबा जब भी वो चाहते हैं तब जो है दे सकते हैं। तकरीबन कई बरस से 10 साल से मैं तकरीबन सोचा था कि कड़पा में ऐसा सेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है रमज़ान आने से पहले सदका दो, ज़कात दो, खैरात दो, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें बेदारों को ले चिल्लाते हैं, लेकिन पैसा कहाँ जाता है, कौन ले जाते हैं, कौन सा मदरसा चलता है, कहाँ से यूपी से बिहार से चलते हैं, वहाँ मदरसे है नहीं है मालूम नहीं। हमारे शहर के मदरसे में तो कम से कम हमारा सुकून रहता है, लेकिन बाहर वाले गिफ्ट ले जाती है, हमारी कौम को नहीं होता। छोटे छोटे 10,000 के वास्ते 5,000 के वास्ते हमारे मुसलमान औरतें
वहाँ पर बाईवी स्ट्रीट में मारवाड़ियों के पास जेवर ले जाकर रख दी। वो जाफर अमीर साहब देखे थे, शायद उनको अंदाजा था या फिर कोई बताए थे, मालूम नहीं था। उसका बहुत बड़ा सदमा था, उनको एहसास था कि हमारी औरतें कम जो है उनकी हैसियत होती है, कम जेवर खरीदते हैं, गरीबी उनके पास हो जाता है, फिर भी जो है अपने ख्वाहिशात पूरे करने के वास्ते या फिर रमज़ान गुजारने के वास्ते या फिर शादी ब्याह में ज़रूरत मुकम्मल करने के वास्ते मारवाड़ी के पास जाकर पैसे रहते जेवर रख देते हैं। और वो जेवर बढ़ता बढ़ता उसका ब्याज ऐसा बढ़ जाता है कि जेवर से दुगना हो जाता है ब्याज। फिर उसके बाद जेवर छुड़ाने के बाद उनकी कैपेसिटी नहीं रहती, हालत उनकी नहीं रहती, जेवर ऐसे छोड़ जाते। तो जाफर अमीर साहब चाहते थे आके कड़पा में बैतुल माल कायम हो, बैतुल माल, जिससे जो है शहर के जो साहिब निसाब हैं या फिर सदका, जिन पर सदका जो देने वाले हैं, जिन पर ज़कात वाजिब है, ऐसे लोगों से जो है ज़कात हासिल करें, या फिर जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेट्स को लें और वहाँ पर एक बैतुल माल कायम करें। और उस बैतुल माल से सिर्फ मुसलमानों को जो छोटी छोटी गाड़ियाँ डालते हैं या फिर छोटे छोटे दुकान चलाते हैं या छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं, घरेलू ये करते हैं, तो उनको जो है उनकी हौसला अफजाई के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए रकम जो है हमारी तरफ से दी जाए। फिर जो है उसूल करने का भी एक बाकायदा ज़ाबिता हो, एक अमला हो। ये सारी चीज़ें 10 साल से जाफर अमीर साहब बोलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके हयात में जो वो बैतुल माल एनजीओ कालीम में हमारे मौलाना की निगरानी में कायम हो गया और उसमें तकरीबन जाफर अमीर साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं सुना था कि ये पिछले साल शायद 10 एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए थे जिसके लिए 2 लाख की ज़रूरत है। तो वहाँ के सदर साहब या फिर कोई और मुझे मालूम है, मौलाना शायद उसका इल्म होगा, तो हम लोग उनको वापस कर देंगे। हमारे पास जो रकम है वो रकम में इतने ही एप्लीकेशन उसमें दिए जा सकते हैं, बाकी के एप्लीकेशन को देने के लिए हमारे पास रकम नहीं है। तो जाफर अमीर साहब बोले कि मैं इंतज़ाम करता हूँ, बोलकर 2 लाख रुपए जाफर अमीर साहब उनकी तरफ से दिए। बच्चों की तरफ पास लिए या फिर किसके पास लिए या फिर उनके पैसे दिए, इतना तो मुझे इल्म नहीं है, बता सकते हैं हमारे मौजूद में आने सुहेल में बता सकते हैं उसके ताल्लुक से। तो 2 लाख रुपए अपनी तरफ से दिए, वो एप्लीकेशन वापस देने की जरूरत नहीं, उनको भी पैसा दो। तो ऐसी कौम से हमदर्दी रखने वाला इंसान, मुसलमान कौम से हमदर्दी रखने वाला, उनके लिए फिक्रमंद रहने वाला हमेशा, और मुसलमानों की फलाह व बहबूदी चाहने वाला, दूसरों का खैर का दूसरों की खैर और भलाई चाहने वाला इंसान आज हमारे दरमियान ही है। इसका हमें बहुत अफसोस है। मरना तो सभी को है, लेकिन बाज़ लोगों की मौत जो है हमारे दिल और दिमाग पर बहुत गहरा चोट कर जाती है। हमेशा जो है जब तक हमें जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह। शायरी बच्चों का हक तो है, बाप होने की वजह से जो है उनको जाफर अमीर साहब की मौत का जो है सदमा हुआ होगा, लेकिन हमारे से जो ताल्लुक है, जो हमारे से जो उनको दिली ये लगाव है, उसका जो है बयान करना बोले तो हमारे बस की बात नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जाफर अमीर साहब इंशाअल्लाह हर अपनी किताबों के जरिए से तो हमेशा जिंदा हैं, लेकिन जब तक हम बाकी हैं, सरदार साहिल और मैं, हमारे सांसों के साथ ही जाफर अमीर साहब का ख्याल जो है हमारे दिलो जहन से जाएगा। मैं फिर एक मरतबा आपका बहुत सारी बातें जो है आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपने बड़े सब्र से सुना। मैं आपका भी, हमारे इसाक साहब सदर साहब का और मौलाना अकबर रशाद साहब का, मौलाना अब्दुल वदूद साहब का, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है मेरे दिली जज्बात को यहाँ पर बयान करने का मौका दिया। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारा वक्त खा लिया है, लेकिन फिर भी मैं इस बात का भी ये गिला करता हूँ कि जाफर अमीर साहब की पूरी बातें जो है मैं आपके सामने रख नहीं सका। अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी जाफर अमीर साहब के उन्वान पर लिखने का मुझे मौका मिला है। जाफर अमीर साहब के हयात में ही मैं जाफर अमीर साहब को सुना चुका कि हजरत आपके नाम पर मुझे पीएचडी लिखने का मौका मिला है। तो अरे वाह, मेरे नाम से पीएचडी कौन दिया, जिसको आपको बोले तो नहीं हजरत, तुम उस काबिल नहीं, 10 किताबें आपकी हैं। और हमारे निसार अहमद साहब जो है खुद चाहते थे कि आप पर पीएचडी करें। मैं जब ये आपका उन्वान ले लगा तो खुश हो गया था, दोनों आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर है बोले तो हजरत भी खुश हो गए। कम से कम हजरत बाहयात थे, उनकी ज़िंदगी में मैं पीएचडी करता हूँ, उनका उन्वान लिया हूँ, ये चीज़ें जो है हजरत तक मैं पहुँचा सका, उसकी खुशी तो मुझे है। मैं फिर से आप सबका जो है शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेना चाहूँ।